हुआ। भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन, खास मौका। देश की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी। रायसीना पहाड़ी पर बना विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसकी नींव सन 1911 में रखी गई थी और इसी के जयपुर कॉलम के नजदीक से गुजर रहा है ये काफिला, जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। The President's limousine is escorted by the President's bodyguard proceeding to gate number 5 of Parliament House. In fact, the 6th Sikh will turn out guard at the southern side of the Jaipur column for departure. Commanding Officer Colonel S.K. Mohanty. तो ये दो तस्वीरें एक साथ हम देख पा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, जहां से राष्ट्रपति को लेकर काफिला निकल चुका है। प्रेसिडेंट इलेक्ट और आउटगोइंग प्रेसिडेंट दोनों ही इस काफिले में संसद भवन की ओर रवाना होते हुए, और हम दूसरी तरफ देख पा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्वागत के लिए तैयार। संसद भवन में सभी तैयारियां पूरी, और दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन से निकलता काफिला। Absolutely. So this motorcade, being escorted by the President's bodyguard to the Parliament House, wherein in the Central Hall of Parliament, the historical Central Hall, which has seen the Indian Constitution being framed every 5 years. We witness momentous occasions like these in this very Central Hall of Parliament. So a lot of historical significance for this particular hall inside the Parliament premises. And now, as you can see, the President-elect, Madam Draupadi Murmu, along with the outgoing President, Mr. Ramnath Kovind, headed towards the Central Hall of Parliament. In a few moments from now, Chief Justice of India N.V. Ramanna will administer the oath of office to Draupadi Murmu as the 15th President of India. Kovind, and of course, a joyous and celebratory moment for Srimati Murmu, but also knowing that she has a task ahead and to serve the country to the best of her ability. The guard and personnel from the three services lining the path with the fundamental responsibility of maintaining the integrity of the Constitution of India. The President of the largest democracy in the world is vested with specific legislative and judicial and financial powers, among many others, to ensure that the sanctity of the Constitution is upheld. And Indian democracy is the result of the great gift our founding fathers gave us. The gift of a constitution that, other than being the longest written constitution in the world, holds in its embrace the firmness to provide us solid and strong roots, and the liberalism to give us wings to grow, fly, and change. And as we await the swearing-in ceremony of India's 15th President to take the place... President's cavalcade to reach the Parliament House premises, you can see Prime Minister Narendra Modi now entering the venue. He's being welcomed by Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, and also Lok Sabha Speaker, Mr. Om Birla. In a short while from now, as you can also see, the motorcade is on its way. The President, along with the President-elect, will be arriving there shortly for the swearing-in ceremony of the 15th President. बहुत ही खास अवसर। देश के राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बहुत ही खास अवसर जब एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई राष्ट्रपति इस
पद की जिम्मेदारी अब से कुछ देर में ग्रहण करेंगे। There invariably is as a form of Vice President and Chairman of Rajya Sabha, Mr. M. Venkaiah Naidu, being welcomed by the Chief Justice and the Speaker of Lok Sabha inside the Central Hall of Parliament, the iconic venue wherein this momentous occasion of the President being sworn in will take place shortly. तो राष्ट्रपति भवन से निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का काफिला संसद भवन की ओर रवाना होता हुआ, जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, साथ ही मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में अब से कुछ ही पलों बाद द्रौपदी मुर्मू को देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख सैन्य और सैन्य अधिकारी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होने के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। चलती रहती है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद शानदार दिन, जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर किस तरीके से हस्तांतरण होता है, ये इसके हम सब गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी लोकतांत्रिक विरासत की ये खूबसूरत तस्वीर। संसद भवन के निकट पहुंचता हुआ ये काफिला कुछ देर में संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा। The carcade making its entry to Parliament House. संसद भवन में दाखिल होता हुआ ये काफिला
carcade has arrived in the Parliament House. The outgoing President, Mr. Ramnath Kovind, along with the President-elect, Madam Draupadi Murmu, have now reached the venue, the Central Hall of Parliament, wherein, in just a few moments from now, Madam Draupadi Murmu will be sworn in as the 15th President of India. Only the second woman President of the country, the first tribal President, also the youngest President India has ever had. The President-elect being welcomed by Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu. Along with him is Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, Lok Sabha Speaker Om Birla as well. Both the outgoing President and the President-elect being accorded the welcome outside the Central Hall of Parliament. That's the tradition, the discipline that, we see every 5 years when the outgoing President escorts the President-elect from the Rashtrapati Bhavan to the Parliament premises, wherein in the iconic Central Hall of Parliament, the President-elect takes oath of office. Madam Draupadi Murmu will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India in the presence of Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla, Prime Minister Narendra Modi, members of the Union Cabinet, also the Chief Ministers of various states, state governors as well, and a host of other dignitaries in attendance inside the Central Hall of Parliament. Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, will administer the oath of office to Madam Draupadi Murmu, who will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India from the iconic Central Hall of Parliament. बिल्कुल अपने आप में ये ऐतिहासिक तस्वीरें कुछ ही पलों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। आजादी के बाद जन्म लेने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली पहली महिला।
राष्ट्रपति महोदय, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूँगी भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगी सदा अपनी पूरी योग्यता से तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी
राष्ट्रपति महोदया, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना जी, सम्मानित सांसदगण, अन्य महानुभावों, देवियों और स्वजनों तथा मेरे प्यारे देशवासियों, सभी को जोहार। भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। मैं भारत के समस्त नागरिकों की आशा, आकांक्षा और अधिकारों की प्रतीक इस पवित्र संसद से सभी देशवासियों का पूरी विनम्रता से अभिनंदन करता हूं। आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रही। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आजादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आजादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। इस ऐतिहासिक समय में जब भारत अगले 25 वर्षों के विजन को हासिल करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटा हुआ है, मुझे ये जिम्मेदारी मिलना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति भी हूँ जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने आजाद हिंदुस्तान के हम नागरिकों से जो अपेक्षाएं की थी उनकी पूर्ति के लिए इस अमृत काल में हमें तेज गति से काम करना होगा। इन 25 वर्षों में अमृतकाल की सिद्धि का रास्ता 2 पटरी पर आगे बढ़ेगा, सबका प्रयास और सबका कर्तव्य। भारत के उज्जवल भविष्य की नई विकास यात्रा हमें सबके प्रयास से करनी है, कर्तव्य पथ पर चलते हुए करनी ही है। काल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। ये दिन भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम दोनों का ही प्रतीक है। मैं आज देश की सेनाओं को तथा देश के समस्त नागरिकों को कारगिल विजय दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस
पृष्ठभूमि से आती हूँ, वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था। लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। मेरे इस निर्वाचन में देश के गरीब व का आशीर्वाद शामिल है। देश की करोड़ों महिलाओं और बेटियों के सपनों और सामर्थ्य की झलक है। मेरे इस निर्वाचन में पुराने लीग से हटकर नई रास्ता पर चलने वाले भारत के आज के युवाओं का साहस भी शामिल है। ऐसे प्रगतिशील भारत का नेतृत्व करते हुए आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मैं आज समस्त देशवासियों को, विशेषकर भारत के युवाओं को तथा भारत की महिलाओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि इस पद पर कार्य करते हुए मेरे लिए उनके हित सर्वोपरि होंगे। देवियों और स्वजनों, मेरे सामने भारत के राष्ट्रपति पद की ऐसी महान विरासत है जिसने विश्व में भारतीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा का निरंतर मजबूत किया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री रामनाथ कोविंद जी तक अनेक विभूतियों ने इस पद को सुशोभित किया है। इस पद के साथ साथ देश ने इस महान परंपरा के प्रतिनिधित्व का दायित्व भी मुझे सौंपा है। संविधान के आलोक में मैं पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मेरे लिए भारत के लोकतांत्रिक सांस्कृतिक आदर्श और सभी देशवासी हमेशा मेरे ऊर्जा के स्रोत रहेंगे। देवियों और स्वजनों, हमारे संवैधानिक संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में एक राष्ट्र के तौर पर भारत की नई यात्रा की रूपरेखा तैयार की है। हमारा स्वाधीनता संग्राम उन संघर्षों और बलिदानों की अविरल धारा है जिसने आजाद भारत के लिए कितनी ही आदर्शों और संभावनाओं की सिंचा था। पूज्य बापू ने हमें स्वराज, स्वदेशी, स्वच्छता और सत्याग्रह द्वारा भारत के सांस्कृतिक आदर्शों की स्थापना का मार्ग दिखाया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहेब अम्बेडकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद जैसे अनगिनत स्वाधीनता सेनानियों ने हमें राष्ट्र की स्वाभिमान को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी थी। रानी लक्ष्मीबाई, रानी वेलु नाचियार, रानी गाईदिन्यू और रानी चेन्निमा जैसी अनेकों वीरांगनाओं ने राष्ट्र इच्छा और
राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति की भूमिका को नई ऊर्जा दी है। संथाल क्रांति, पाइक क्रांति से लेकर कोल क्रांति और भील क्रांति ने स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी योगदान को और सशक्त किया। सामाजिक उत्थान एवं देश प्रेम के लिए धरती व भगवान बिरसा मुंडा जी के बलिदान से हमें प्रेरणा मिली थी। मुझे खुशी है कि आजादी की लड़ाई में जनजातीय समुदाय के योगदान को समर्पित अनेक म्यूजियम देश भर में बनवाया जा रहा है। देवियों और स्वजनों, एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में 75 वर्ष में भारत ने प्रगति के संकल्प को सहभागिता एवं सर्वसम्मति से आगे बढ़ाया है। विविधताओं से भरे अपने देश में हम अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों का अपनाते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में सक्रिय है। आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर आया है अमृतकाल। भारत के लिए नए संकल्पों का कालखंड है। आज मैं इस नए युग के स्वागत में अपने देश को नई सोच के साथ तत्पर और तैयार देख रही हूँ। भारत आज हर क्षेत्र में विकास का नया अध्याय जोड़ रहा है। कोरोना महामारी के वैश्विक संकट का सामना करने में भारत ने जिस तरह का सामर्थ्य दिखाया है, उसने पूरे विश्व में भारत की साख बढ़ाया है। हम हिंदुस्तानियों ने अपने प्रयासों से न सिर्फ इस वैश्विक चुनौती का सामना किया, बल्कि दुनिया के सामने नए मापदंड भी स्थापित किए। कुछ दिन पहले भारत ने कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज लगाने का कीर्तिमान बनाया। इस पूरी लड़ाई में भारत के लोगों ने जिस संयम, साहस और सहयोग का परिचय दिया, वो एक समाज के रूप में हमारी बढ़ती हुई शक्ति और संवेदनशीलता का प्रतीक है। भारत ने इन मुश्किल हालात में न केवल खुद को संभाला, बल्कि दुनिया की मदद भी की। कोरोना महामारी से बने माहौल में आज दुनिया भारत को नए विश्वास से देख रही है। दुनिया की आर्थिक स्थिरता के लिए, सप्लाई चेन की सुगमता के लिए और वैश्विक शांति के लिए दुनिया को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। आगामी महीनों में भारत अपनी अध्यक्षता में G20 ग्रुप की मेजबानी भी करने जा रही है। इसमें दुनिया के 20 बड़े देश भारत की अध्यक्षता में वैश्विक विषयों पर मंथन करेंगे। मुझे विश्वास है भारत में होने वाले इस मंथन से जो निष्कर्ष और नीतियां निर्धारित होंगे, उनसे आने वाले दशकों की दिशा तय होगी। देवियों और स्वजनों, दशकों पहले मुझे रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला था। कुछ ही दिनों के बाद श्री अरबिंदो जी की 150वीं जन्म जयंती मनाई जाएगी। शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो के विचारों ने मुझे निरंतर प्रेरित किया है। जनप्रतिनिधि के रूप में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए और फिर राज्यपाल के रूप में भी मेरा शिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय जुड़ाव रहा है। मैंने देश के युवाओं के उत्साह और आत्मबल को करीब से देखा है। हम सभी के श्रद्धेय अटल जी कहा करते थे कि देश के युवा जब आगे बढ़ते हैं तो वे सिर्फ अपने ही भाग्य नहीं बनाते, बल्कि देश का भी भाग्य बनाते हैं। आज हम इसे सोच होते देख रहे हैं। वोकल फॉर लोकल से लेकर
डिजिटल इंडिया तक हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा आज का भारत विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर औद्योगिक क्रांति 4.0 के लिए पूरी तरह भारत तैयार है। रिकॉर्ड संख्या में बन रहे स्टार्टअप्स में नए इनोवेशंस में दूर सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की स्वीकार्यता में भारत के युवाओं की बड़ी भूमिका है। बीती वर्षों में भारत ने जिस तरह महिला सशक्तिकरण के लिए निर्णय लिए नीतियां बनाई गई है, इससे भी देश में एक नई शक्ति का संचार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि हमारी सभी बहनें व बेटियां अधिक से अधिक सशक्त हो तथा वे देश के हर क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाती रहें। मैं अपने देश के युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप न केवल अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रख रहे हैं। देश के राष्ट्रपति के तौर पर मेरा हमेशा आपको पूरा सहयोग रहेगा। देवियों और सुजों, विकास और प्रगतिशीलता का अर्थ निरंतर आगे बढ़ना होता है, लेकिन साथ ही अपने अतीत का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आज जो विश्व सस्टेनेबल प्लैनेट की बात कर रहे हैं, तो उसमें भारत की प्राचीन परंपराओं, हमारे अतीत की सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की भूमिका और बढ़ जाती है। मेरा जन्म तो उस जनजातीय परंपरा से हुआ है जिसने हजारों वर्ष से प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर जीवन को आगे बढ़ाया है। मैंने जंगल और जलाशयों के महत्व को अपने जीवन में महसूस किया है। हम प्रकृति से जरूरी संसाधन लेते हैं और उतनी ही श्रद्धा से प्रकृति से सेवा भी करते हैं। यहाँ संवेदनशीलता का आज वैश्विक अनिवार्यता बन गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शक बन रहा है। देवियों और स्वजन, मैंने अपने अब तक के जीवन में जन सेवा में ही जीवन की सार्थकता को अनुभव किया है। श्री जगन्नाथ क्षेत्र के एक प्रख्यात कवि भीम भोई जी की कविता की एक पंक्ति है, मो जीवन पछे नर्क के पड़ी था जगत उद्धार। अर्थात अपने जीवन के हित और हित से बड़ा जगत कल्याण के लिए कार्य करना होता है। जगत कल्याण की इसी भावना के साथ मैं आप सबके विश्वास पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा व लगन से काम करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगी। आइए हम सभी एकजुट होकर समर्पित भाव से कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तथा वैभवशाली व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Honorable President, Srimati Draupadi Murmu ji, respected Sri Ramnath Kovind ji, Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi ji, Speaker of Lok Sabha Sri Om Birla ji, Chief Justice of India Sri N.V. Ramana ji, respected parliamentarians, other dignitaries, brothers and sisters, and my dear fellow citizens, Namaskar. Madam President, you have just addressed the members of the Parliament. I wish to read a few paragraphs from the English version of the address, and the rest of
rest may be considered as read in view of the time constraint. I express my heartfelt gratitude to all members of Parliament and legislative assemblies for electing me to the highest constitutional post of India. Brothers and sisters, we have to work at a fast pace in this Amrit Kal to fulfill the expectations of our freedom fighters from the citizens of independent India. In these 25 years, the path to attain the goals of Amrit Kal will proceed on two tracks, Sabka Prayas or Sabka Kartavya, everyone's effort and everyone's duty. The new development journey towards the bright future of India has to be undertaken by our collective efforts following the path of duty. We will be observing Kargil Vijay Divas tomorrow, July 26th. This day is a symbol of both the bravery and the restraint of the Indian armed forces. Today, I extend my best wishes in advance to the armed forces of the country and to all the citizens of India. Brothers and sisters, growth and progress mean continuously marching ahead, but equally important is awareness about one's past. Today, when the world is talking about sustainable planet, the role of India's ancient traditions and sustainable lifestyle becomes more important. I was born in the tribal tradition which has lived in harmony with the nature for thousands of years. I have realized the importance of forests and water bodies in my life. We take necessary resources from nature and serve nature with equal reverence. This sensitivity has become a global imperative today. I am happy that India is guiding the world in the field of environmental protection. Brothers and sisters, in my life so far, I have realized the meaning of life only through public service. There is a line from the poem of Bhim Bhoi Ji, a famous poet of Sri Jagannath Kshetra. Mo Jeevan Bacche, Narke Paditao, Jagata Uddar Hev. That is, working for the welfare of the world is far greater than one's own interest. With the spirit of welfare of the world, it always be ready to work. All of us, with full devotion and dedication, to live up to the trust you all have reposed in me. Let us all unite and move forward on the path of duty with a dedicated spirit to build a glorious and self-reliant India. Thank you. Jai Hind. राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाए। नमस्ते करेंगे।
The 25th of July, yet again going down in Indian history as a significant day. The 10th successive president to have been sworn in today. Madam Draupadi Murmu was sworn in as the 15th president of India a short while ago. The oath of office was administered to her by Chief Justice of India, N.V. Ramanna. The ceremony has now concluded. In fact, after the oath-taking ceremony, which was followed by a 21-gun salute and the first address of the 15th president, which was then, excerpts of which were also translated in English and read out by Vice President and Rajya Sabha Chairman Mr. M. Venkaiah Naidu. The ceremony in the Central Hall of Parliament has now concluded, and as you can see, the 14th President of India, Mr. Ramnath Kovind, the new President, Madam President Murmu, along with other dignitaries now leaving for the Rashtrapati Bhavan. तमाम इतिहास जो आज इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ हमने बनते देखे, आजादी के बाद जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति देश को मिली है। साथ ही हम देख रहे हैं कि अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन की ओर रवाना होंगी और राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में हैंडिंग ओवर सेरेमनी होगी और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से रामनाथ कोविंद विदा होंगे। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देश में दूसरी बार सर्वोच्च पद पर महिला आसीन हुई हैं। कई मायनों में आज हमने इतिहास को बनते देखा है और तमाम बड़ी बातें जो आज राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कही हैं, उन्होंने नई भारत की नई तस्वीर का जिक्र किया और कहा कि वो तमाम देशवासियों की जो आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनका अभिनंदन करती हैं और सबसे बड़ी बात कि एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि एक और महत्वपूर्ण पड़ाव जब देश ने आजादी के 50 साल पूरे किए, उस वक्त उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और आज जब देश अमृत महोत्सव मना रहा है, उस वक्त उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। Absolutely, and significantly, as the new Commander-in-Chief of the Indian Armed Forces, the President also hailed the contribution, the grit, the valor of the security forces, the Indian Armed Forces, who continue to guard us. And as 26th of July is remarkable in Indian history, we celebrate Kargil Vijay Divas on this very day. Just a day before that, Madam President Murmu has taken oath as the 15th President. And the President in India is the Commander of the Indian Armed Forces.
So after the conclusion of the swearing-in ceremony of the 15th President of India, the motorcade of the new President on its way back to the Rashtrapati Bhavan, where in a short while from now we will witness an inter-services guard of honor which will be given to her in the forecourt of the Rashtrapati Bhavan. Also courtesies will be extended to President Ramnath Kovind, the 14th President of India, whose tenure ended on the 24th of July. 25th of July, that's today, the country has gotten its new president, the first coming from the most marginalized section of our society. Madam Murmu belongs to a tribal community, and she in a way represents an inclusive democracy that India is known for. As you must have heard in her speech, from the first college goer in her village to now being elevated to the first citizen of the world's largest democracy. Her journey has been remarkable. In a short while from now, the Inter-Services Guard of Honor at the Rashtrapati Bhavan. और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह और संजय सिंह, दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल जी, पहली आपकी प्रतिक्रिया, इतिहास को हमने बनते देखा और अब एक तरह से मैं कहूं कि औपचारिक हस्तांतरण की जो आखिरी प्रक्रिया है वो अब संपन्न होगी राष्ट्रपति भवन में। एक और तस्वीर जो हम इस मौके पर देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ये तमाम तस्वीरें अपने आप में क्या संकेत दे रही हैं भारत के लोकतंत्र को लेकर? देखिए, आज का जो दिन है, जो मुर्मू जी ने पूरे अपने भाषण में जिस चीज का जिक्र किया, आप भी कर रही थी, उन्होंने कहा कि जब आजादी के 50 साल हुए थे तो उन्होंने इस राजनीति में कदम रखा था, और आज 75 साल जब हो रहे हैं तो वो इस देश के सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। ये अपने आप में एक बताता है कि भारतीय लोकतंत्र, जिनको शुरू में आजादी के बाद ये शंका थी कि इस देश में इतनी बड़ी आबादी में लोकतंत्र चल भी पाएगा कि नहीं चल पाएगा, वह लोकतंत्र कैसे धीरे धीरे क्वांटिटेटिव चेंज उसमें हो रहा था। और आज की तारीख ऐसी है कि जब क्वांटिटेटिव चेंज क्वालिटेटिव चेंज में बदल जाता है तब दिखाई पड़ता है। जैसे पानी 99 डिग्री तक आपको 0 से 99 पानी दिखेगा, लेकिन 100 पर वो भाप बनता है। आज मुर्मू जी का जो पूरा है, मैं एक लाइन में अगर कहूं तो जंगल, खेत की मेड़, गांव की जो धूल है, धूल भरा हुआ पांव आज राष्ट्रपति ये पद के दरवाजे तक पहुंचा है। भारतीय लोकतंत्र का इससे बड़ा मैसेज पूरी दुनिया के लिए कि कैसे हम कहां तक पहुंचे हैं। और देखिए, हमारे यहाँ शायद भारत, मैं समझता हूं, मुझे नहीं पता कि जैसे मुर्मू जी ने कहा, मुर्मू जी का जो व्यक्तिगत जीवन रहा है वो संघर्षों की ऐसी कहानी है दुख भरी, जिसको देख करके कोई भी पढ़ करके पता चलेगा लोगों को। लेकिन इस महिला का जो आत्मविश्वास है, देखिए उन्होंने बड़े चुन चुन के शब्द कहे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने इस राजनीतिक जीवन में महिलाओं और युवाओं के सपने और उनकी सामर्थ्य, एब्सोल्युटली, सो ये जो वर्ड है ना, उनके सपने और उनकी सामर्थ्य। और एक उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान धीरे धीरे लीक से हट करके एक नया हिंदुस्तान बन रहा है, जिसको देखिए मोदी जी ने भी कई बार अपना कहा होगा कि 2000 हमें एक नए हिंदुस्तान की तरफ जाना है। तो कैसे उन्होंने, देखिए, एक गांव से निकली हुई, अपने गांव की पहली वो महिला थी जो स्कूल गई थी, एक पढ़ाई करने, कॉलेज गई, वो उनकी एक आज पूरा का पूरा उनका भाषण एक पोएटिक रहा है। वो अपने आप में कविता है, एक एक लाइन बहुत कुछ कहती है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई बहुत कुछ कहती है, वैसे मैं इस मामले में कि जो बातें उन्होंने जिस तरह से कही, और देखिए कहीं भी उनमें इस पद पर पहुंचने के बाद जो विनम्रता झलक रही है, जो आभार है, पूरे जो कष्ट उन्होंने जीवन में सहे उसके लिए भी वो समस्त भारतीय समाज का आभार व्यक्त करती हैं। यानी संघर्ष जो है
वो आपको विनम्र बनाता है। सफलता जहां पहुंचती है तो वो उदारता और विनम्रता के साथ पहुंचती है। Absolutely. It is, this modesty, this simplicity, and the kind of life that she has had, the struggles that she's faced over the, over the entire course of her life so far. Her elevation to the top constitutional post of the country reflects that she is a symbol of not just the marginalized sections of society, but also for women across the country, for youth. In fact, she symbolizes new India in many ways. She's the first president of India to, in fact, who was born in independent India post 1947. Mr. Singh, coming to you for your reaction, in a world where we are seeing fast-changing political dynamics, not to go too far, within our neighborhood, we can see several democracies, witnessing political upheavals, elected governments in thriving democracies have been overthrown by anti-state factors. Even in that surrounding, India, the world's largest democracy, shines bright, a symbol of this inclusive democracy of empowering that very section which has been, remained marginalized, which has remained downtrodden for decades together. See, Draupadi Murmu elevation to the post of president, highest office in India, and her swearing in today gives a great message, not just to every single Indian in the country, but also people abroad. Look at the composition that was there on the dais. You had Chief Justice, you had the outgoing president, you had incoming president, now the President of India, you had Vice President, and you had Lok Sabha Speaker. And seated was Prime Minister and host of other dignitaries. Each person represented different region of the country. You had representation of East, North, South and West. That is the best part of democracy. Two persons who, Chief Justice of India, N.V. Ramanna, and the President, Draupadi Murmu, their mother tongue is not Hindi. The oath was administered in Hindi and she read out her oath in Hindi. That is, I think, one of the best part that was there. The other part was the personal touch in Draupadi Murmu's speech, a very personal touch, recounting a bit of her own story to inspire people, the journey, the connect of tribal community with the nature. When we are talking so much about the nature, she is a great inspirational story. She is a story for every Indian to aspire for whatever, give wings to your dreams. On 75th anniversary of India's independence, you have a Prime Minister, Narendra Modi, who by himself is an inspirational story, born in a very marginalized family. And from there on to, by his own struggle, by his own courage and conviction, Prime Minister of the country. You have President who by herself is a great inspirational story, coming from a community which though constitutes about 10% of Indian population, but is on the margins of. Absolutely. And Mr. Tandon, a reaffirmation that in India, democracy is not a privilege, it is a way of life, where the poorest of the poor, even the marginalized one, can dream and, be seated on the top constitutional post. Certainly, the incoming president summed up her feelings in 3 sentences. First, she said her elevation to the highest post in the country is not her personal victory or achievement. It is the achievement of all the poor, downtrodden, weaker section and marginalized sections of the society. The second, she said that all these sections, which I have referred to, can see their image in me. I represent all of them, and also that the women folk. She said that I represent the entire women folk in the country. And then she went on to call upon, appeal to the youth to see the achievement of a downtrodden tribal woman. And therefore, they should take inspiration from that. And she said, I promise you all the help, assistance and cooperation to the youth of this country to achieve their goal, and whatever they have, the dreams they have, they can be fulfilled, because in a democratic society, Indian Republic, every section of the society gets a chance to fulfill its dream. So, summing up,
that she represents not only the poor, the weaker section, the marginalized section, the tribal community, but the youth and the women folk all in one. So they can all the time look at her. यहाँ हम सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से देख रहे हैं और राष्ट्रपति भवन में अब औपचारिक तौर पर विदाई दी जाएगी रामनाथ कोविंद को और यहाँ गार्ड ऑफ ऑनर के बाद हम देखेंगे औपचारिक विदाई होती हुई। साथ ही इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर की जो औपचारिकता है, जो प्रक्रिया है, वो फिलहाल यहां पूरी की जाएगी। सीधी तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से। TBG Commandant Colonel Anup Tawari giving the command. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, boarding her vehicle along with former President Shri Ramnath Kovind. ये काफिला नॉर्थ कोर्ट की ओर बढ़ता हुआ, जहां से अब राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति कमेटी रूम की तरफ जाएंगे। Here at the North Court, awaiting the arrival of the new president, personnel and staff of Rashtrapati Bhavan. Greeting their new president. राष्ट्रपति भवन स्वागत कर रहा है नए राष्ट्रपति का, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और उनके साथ पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। The President moves towards the committee room and also her new office and her new residence. राष्ट्रपति भवन के इस भव्य गलियारे पर पूर्व राष्ट्रपतियों के चित्र, कावेरी जो कमेटी रूम है उस ओर प्रस्थान। This magnificent building, sandstone, pink and cream, the Rashtrapati Bhavan has a fabulous history of its own. रामकृपाल जी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें भी हमने देखी किस तरह से हैंडिंग ओवर सेरेमनी हुई है। रामनाथ कोविंद ने अपने जो अंतिम भाषण है उसमें कहा था कि मुझे दृढ़ विश्वास है कि मेरा जो देश है वो 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार हो रहा है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि 2 पटरियों पर देश आगे बढ़ेगा।